In your homework, there are 4 questions. In first question, temperature is 313 Kelvin. And in second question, temperature is 233 Kelvin. So what the temperature in degrees Celsius as well as in degree Fahrenheit? बताइए आंसर। Temperature is given in Kelvin and we have to find degree Celsius. Degree Celsius is equal to Kelvin minus 273. Kelvin is equal to 233 minus 273. It is equal to minus 40 degree Celsius. Now we find the answer in Fahrenheit. Degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 degree Celsius plus 32. 9 by 5 minus 40 plus 32. ये 8 से कट जाएगा और 8 into 9 into 8 72. लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस की पावर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है 32 माइनस 72 प्लस 32 माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन होगा, यहाँ पर एक रिलेशन होगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल, तो डायरेक्ट आंसर लगाइएगा माइनस 40 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल, जल्दी से बताइए। सारे लोग बताइए, जितने लोगों को समझ में आया चैट में सारे लोग बताइए। वेरी गुड, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In third question, temperature is equal to 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर निकालेंगे डिग्री सेल्सियस और फिर कैलोरी निकालेंगे। 8 माइनस 32 बाय 9 इंटू 5, 41 माइनस 32 by 9 into 5, 9 by 9 into 5 is equal to 5 degrees Celsius, है ना। Now Kelvin is equal to 273 plus degree Celsius, 273 plus 270 Kelvin। सही हुआ सबका?
Next question. Temperature is -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट निकालना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बता दें, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 -10 प्लस 32, 2 से कट जाएगा। 9 into 2 minus 18 plus 32. It is equal to 14 degree Fahrenheit. Now Kelvin. 273 plus degree Celsius. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 273 minus 10 263 Kelvin. सबका सही हुआ? ठीक, how many students? Very good. How many students get clear this concept? How to find the temperature in different units? आप लोग क्लियर और नॉट क्लियर लिख दीजिए। Very good. Very good. Now tell me, do you want to practice more question? Good. So I will provide some questions in your assignment. Where you can find your assignment? In a school app. Okay. Open your school app and date is 28th of May, subject science, and there you can easily find the question, the different question. You have to find the temperature. But after 4 PM आपको होमवर्क जो मिलेगा वो 4 PM के बाद। ऐसा नहीं क्लास खत्म हुआ और आप लोग तुरंत होमवर्क खोलने लगे, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 PM 4 बजेगा आपको स्कूल ऐप पर अपडेट मिलेगा। समझ में आ गया? Next day your answer will be matched. Practice complete. Okay students, now we will start the next topic, which is thermometer. Our next topic is thermometer and types of thermometer. As we discussed earlier, thermometer is a device which is used to measure temperature of the body. ठीक है,
अब ये बॉडी में लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. नाउ वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. देयर आर mainly two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. ठीक है, मेनली टू तरह का होता है, अदर और भी होता है. इसको बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका स्ट्रक्चर एंड वर्किंग एग्जाम में आएगा. ठीक है, और इनका फंक्शन हम लोग से समझ लेंगे. ठीक है, तो एक एक करके स्टडी करते हैं. इफ यू हैव टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, then we use clinical thermometer. As we know that the human body temperature is about 37.2 degree centigrade, due to which the range of clinical thermometer vary between 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है 35 से कितना है 42. क्यों ऐसा रेंज कम क्यों है? क्योंकि हम लोग इससे बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं. तो बॉडी टेम्परेचर कभी भी 0 तो नहीं हो सकता, 100 तो नहीं हो सकता. वो कितना से कितना वेरी करेगा? 37, 36, मैक्सिमम 40. तो हम लोग कितना करते हैं 35 से 42. Now we're talking about laboratory thermometer. It is used to measure other than human body. ठीक है, इससे हम लोग ह्यूमन बॉडी के अलावा, जैसे कोई लिक्विड हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसका टेम्परेचर हमको मेजर करना. इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अभी हम सब बताएंगे. आपको पहले पढ़िए तो. डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी क्लियर है सबको? कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कितना टेम्परेचर रेंज होता है? बताइए. ओहो, बता तो रहे हैं शुभम गुप्ता. अभी आपको पढ़िए जो ब्रिटिश ऐप पर थर्मामीटर आया है उसके बारे में बताएंगे. देखिए, क्लास खत्म होने के 2-4 मिनट पहले आपको होमवर्क बताते हैं ना, तो वो होमवर्क में आपको बताया जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं डिजिटल थर्मामीटर. देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो थर्मामीटर में क्या हो गया? डिजिटलाइजेशन हो गया. इसमें क्या होता है, मरकरी के जगह पर एक चिप होता है. जैसे क्लॉक में हम लोग
क्वार्ट्ज क्लॉक यूज करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी एक चिप लगा हुआ था, इसके जगह पर मरकरी की जगह, और इसमें जो टेम्परेचर बताता है वो आपका डिजिटल फॉर्म में, यानी नंबर के फॉर्म में बताता है। डिजिटल थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल में भी यूज कर सकते हैं और लेबोरेटरिकल में भी यूज सकते हैं, यानी कि दोनों तरह का यूज, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसको हम किचन में भी यूज कर सकते हैं, क्लिनिक में भी यूज कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट वन है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर is used to measure atmospheric temperature. If you used to read the newspaper, तो वहां पर देखिए लिखा हो रहेगा गया, गया का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस, गया का मिनिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ह्यूमिडिटी 40%। ठीक है, सनराइज, सनसेट न्यूज़पेपर में देखे हैं, या फिर आप देखे होंगे मोबाइल के ऐप पर, यहाँ भी लिखा रहता है एक्टिव वेदर। बताइए कितने लोग ऑब्जर्व किए ये? ऑब्जर्व किए हैं? ऑब्जर्व किए हैं सब? न्यूज़पेपर में, मोबाइल पर? ठीक, समझ में आ गया सबको? मैक्सिमम मिनिमम कहाँ यूज होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। आप लोग देखिएगा न्यूज़पेपर या मोबाइल फोन में होम स्क्रीन पर लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम, मिनिमम, ह्यूमिडिटी, सनराइज, सनसेट। ठीक है, मोबाइल पे स्क्रीन पर देखिएगा, अगर वो सनी डे है तो सन बना हुआ रहेगा, क्लाउडी है तो क्लाउड बना हुआ रहेगा, है ना? नाइट में मून बना हुआ रहता है। तो मैक्सिमम मिनिमम यूज होता है किसी भी लोकेशन का टेम्परेचर बताने में। क्लिनिकल यूज होता है ह्यूमन बॉडी में, लेबोरेटरी यूज होता है अदर देन ह्यूमन बॉडी। डिजिटल, उसमें हम लोग नंबर्स के फॉर्म में एक चिप की वजह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और एक सेल भी लगा, बैटरी यूज होता है। इन दोनों में कोई बैटरी यूज नहीं होता है। लास्ट है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर atmospheric temperature. Now we study about clinical and laboratory thermometer. Clinical and laboratory. In a thermometer, the two most important part is glass tube and bulb.
ठीक है, ये दोनों पार्ट कॉमन है, चाहे क्लिनिकल हो या लेबोरेटरिकल। अब डिफरेंस क्या है? तो बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज king but theoretical thermometer does not have any king। king क्या होता है? king एक छोटा सा डिवाइस होता है, king एक छोटा सा डिवाइस होता है जो मरकरी को नीचे फॉल होने से रोकता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। क्लिनिकल थर्मामीटर is used to measure body temperature. When we measure the body temperature and when thermometer is kept outside from the body, then temperature starts falling। ठीक है, तो नीचे गिरने लगता है, इसको रोकता है एक छोटा सा डिवाइस जिसका नाम है किंग, एक सी टाइप का है ना, सी शेप। इसका शेप कैसा होता है? सी, जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना सी, उसी ऐसा ये होता है। लेकिन लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में कोई भी किंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए लेबोरेटरिकल और क्लिनिकल में। पहला डिफरेंस ये है, clinical thermometer is used to measure human body and it is used to measure other than human body। दूसरा है, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है -10 से 110 डिग्री। ठीक है, इसके पास क्या है? किंग है और इसके पास कोई किंग नहीं। इसमें जो टेम्परेचर बताएगा वो आप 35.6, 35.7, ठीक है, यानी कि पॉइंट में भी आंसर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री है, यानी कि आप 10 के बाद डायरेक्ट 11 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, बीच में आपको कोई टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ये 4 डिफरेंस है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरिकल। अब आपको क्वेश्चन था कि स्कूल ऐप पर क्या मिला। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, तो उनके लिए है आपको क्लिनिकल एंड लेबोरेटरिकल थर्मामीटर के बारे में शॉर्ट नोट यूज करना है। नोट कॉपी में शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहले क्लिनिकल थर्मामीटर का फिगर बनाइए, उसमें क्या क्या होता है, और फिर लेबोरेटरिकल थर्मामीटर का फिगर बनाइए, फिर उसमें क्या क्या होता है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखना है। ठीक है, तो जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल ऐप पर जाइए और कल के डेट में 27 तारीख को जाइएगा, उसमें आपको क्लिनिकल और लेबोरेटरिकल का फिगर मिल जाएगा। बस यही क्वेश्चन। बोलिए क्या क्वेश्चन है?